Assalamualaikum everyone, welcome to Youth Talk, exclusively available at Zab FM Digital, powered by Zabist Karachi. I am Sabika Numan, your host, and today we will be talking about anti-terror laws and the psychological impact that they have on people like us. Before we start, just a little disclaimer, this is an academic discussion, purely just for entertainment purposes. We are not experts, nor do we claim to be. Okay, without further ado, I'd like to introduce the three lovely participants that we have today that we are going to have this discussion with. So, would you like to introduce yourself, guys? Yeah. My name is Dua Kamar and I am from BS Psychology. My name is Aisha and I am from BS Psychology. My name is Mahmoud Bashir and I am also from BS Psychology. All right, lovely. So, all of us are from the BS Psychology degree at Zabist, and that is why I feel like it is so important, and that we'll be really great at talking about the psychological impact of anti terror laws in Pakistan. Okay, so first of all, what are anti terror laws? What's the first thing that comes to your mind when you hear anti terror laws? So I think the first thing that comes into my mind is safety. There are certain laws or government or state forms to protect you from terrorist attack, and it ensures that every individual uh, feels protected and their safety is not compromised. So I think Alright. that's what I. Okay, so do you think that fear changes the kind of laws that people are willing to accept? I think yes, like when people are so scared, मतलब उनको इतना डर हो कि तो वो अपने इमोशन को साइड पे रख के अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करते हैं. So they are more willing to accept whatever government imposes on them. Okay, that's a very interesting take on it, which I do agree with. But can a country protect national security while without limiting certain freedoms? What do you think? I think it can, but उनको गवर्नमेंट को मतलब कुछ वो फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है क्योंकि सारी फ्रीडम्स को अलाउ करके गवर्नमेंट सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर सकती. Yeah. Okay. So why did your group choose this topic, psychological impact of anti-terror laws? So we choose this topic because in Pakistan ज़्यादातर लोग मतलब लीगल साइड ऑफ द एंटी टेरर लॉ को देखते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन पीपल. मतलब उनका जो इम्पैक्ट होता है ऑन देयर माइंड और देयर इमोशंस तो उसको साइडलाइन कर दिया जाता है. तो इस वजह से Okay. Okay, good. How do you think terrorism उसने कैसे शेप किया है जो पाकिस्तानियों की थिंकिंग होती है, जो इनकी हरकतें होती हैं, बिहेवियर जो होती है, how does terrorism shape that? I think this creates a constant fear in someone in us. For example, for especially anxiety. Like अगर हम पब्लिक स्पेस में कभी भी जाते हैं तो हमें कांस्टेंट थ्रेटन फील होता है. हमें एक जो घर में है और पब्लिक स्पेस में भी कॉन्स्टेंटली फील थ्रेटन और जो वल्नरेबल की जो फीलिंग आती है. आई थिंक जब से ये ख़ास तौर पे जैसे हम बात करते हैं एपीएस अटैक की या फिर मुख्तलिफ जो हम टेररिज्म के अटैक जो हम न्यूज़ में देखते हैं उसके बाद से आई थिंक एक कॉन्स्टेंट एनजाइटी फील होती है. स्पेशली अगर हम अपनी भी बात करें तो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. Exactly. Like मतलब there's no sense of safety within us. कि मतलब even अगर हम घर पे हों तो हमें होता है कि कुछ भी हो सकता है. जैसे अभी कुछ महीनों पहले there was a really big controversy जिसकी वजह से हम ये यूनिवर्सिटी भी नहीं आ सक रहे थे उस वक्त, और ये डर था कि बॉम्ब थ्रेट होगा या मतलब बहुत वो यू हैव टू लिव लाइफ ऑन द वेरी एज ऑफ योर सीट कि कुछ नहीं पता होता कि क्या होगा, क्या हो सकता है. तो इसी के बारे में लाइक do you think we are psychologically conditioned to accept these stricter security measures? कि जब उस वक्त जब bomb threats वगैरह हो रही थी तो हमें automatically like we got used to the fact कि वो इधर उधर rangers फिर रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है. तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानियों को ये कंडीशन हो गया है कि हाँ बस सही है यार, है तो है? मतलब somehow ऐसा होता है कि लाइक जब कितने ट्रेजिक इवेंट्स हुए हैं सो इस वजह से लोग जो है ना ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लाइक आवर राइट डजंट मैटर, फर्स्ट आवर सिक्योरिटी इज. सो दे फॉरगेट अबाउट देयर राइट्स एंड फोकस ओनली ऑन देयर सिक्योरिटी. और जो भी फिर चल रहा होता है दे जस्ट एक्सेप्ट इट कि यार दिस इज फॉर आवर सिक्योरिटी. Yeah. So how does fear influence your public opinion during these kind of times?
So we all know that fear is one of the great factors which influence decision making, और वो लोगों की जो डिसीजन को लेना होता है वो चेंज कर लेता है, तो वो करता है मतलब जो हम डिसीजन लेना होता है और तो हम अगर कोई इंसान डर रहा होता है जैसे कि सेफ्टी के लिए, अभी किसी को डिसीजन लेना है और इस चीज़ पे है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो अभी इतना ख़तरनाक डिटेंशन से वो डरते हैं कि कुछ इलीगल एक्शन हमारे खिलाफ लिया जाएगा, तो इसलिए उनकी डिसीजन मेकिंग इफेक्ट होती है फेयर की वजह से। ओके तो आप लोगों ने अपने पेपर में आर्टिकल 14 के बारे में डिस्कस किया था, डिग्निटी ऑफ मैन। तो एक तो आर्टिकल 14 के बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता हो, बट ऑल्सो हाउ डज how can those anti-terror laws affect a person psychologically with Article 14 in mind? आर्टिकल 14 जो है वो है मतलब कि डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट मैन की प्रोटेक्ट होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए वो वायलेट नहीं होनी चाहिए, ये है आर्टिकल 14। एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसके ये है कि जब सेफ्टी नहीं होती, और जैसे आजकल अभी कुछ टाइम पहले भी इस्लामाबाद में एक मॉस्क पे अटैक हुआ था, कितने सारे लोग उसमें मारे गए थे, तो फिर लोग अपनी डिग्निटी को पीछे कर लेते हैं कि मतलब लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब वही बात हुई कि वो कंडीशन हो जाता है उसी चीज़ के अंदर। ओके तो आर्टिकल 10A राइट टू अ फेयर ट्रायल, उसका क्या इम्पोर्टेंस है स्पेशली इन जो काउंटर टेररिज्म केसेस होते हैं? I think this right tells us that every individual has the right to defend themselves and they will be treated fairly regardless of anything. Yeah. So they'll not be discriminated based on anything. Yeah. Do you think that's actually It doesn't happen, or it's not implemented, just on the papers. Yeah, exactly. So I feel like that's why it's important to have knowledge about your constitutional rights as well. तो जो एंटी टेरर ऑपरेशंस होते हैं मोस्टली कंडक्टेड एंड एवरीथिंग, डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर फुली प्रोटेक्टेड विद इन दोज और नॉट? No, because they focus more on our security. यही बात आती है कि मतलब जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो फिर even the law and the people itself focus fully on their security. और पाकिस्तान में तो स्पेशली बिल्कुल ही सिक्योरिटी पे ज़्यादा जोर किया जाता है, जो वो है रिस्पेक्ट और डिग्निटी उसको बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। यस तो जो हमारी स्टेट है और जस्ट एनी स्टेट, where should it draw the line between protecting citizens and controlling citizens? I think laws ऐसे हों कि सेफ्टी तो इंश्योर करें लेकिन किसी की डिग्निटी, किसी की रिस्पेक्ट इस पे बात ना है, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जो बेसिक इंडिविजुअल के राइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, मतलब उनको मैन हैंडल नहीं करना चाहिए। मैन हैंडल नहीं, दे शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमंस। यस आई थिंक खास अब पाकिस्तान में देखते हैं कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो किस तरह, हम रिसेंट हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी का हमने देखा था जो उनके जो सपोर्टर्स थे उनको किस तरह ट्रीट किया था। एग्जैक्टली आई थिंक दिस रियली मैटर्स In a certain way कि मतलब they should keep balance. yes Both on both like sides. have you guys heard about that university in Lahore जिधर वो students protest करने की कोशिश कर रहे थे और उनके against वो like police force set हो गई थी और Yeah. मतलब they were humiliated, they were degraded, they were not heard। जो हमारी right है कि peaceful protest कर सकते हैं वो like नहीं दी गई, तो वही बात है कि कंट्रोल किया जा रहा है rather than protect। अच्छा तो आयशा यू मेंशन समथिंग अबाउट द APS पेशावर अटैक, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आई थिंक जब ये अटैक हुआ था ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हुआ था एंड आई वाज अराउंड आई थिंक 8 और 9 एट दैट टाइम, और मुझे अभी भी याद है कि पेरेंट्स डरने लग गए थे, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे कि वो ना हो। और जब हम स्टोरीज देखते हैं, सर्वाइवल स्टोरीज देखते हैं उन लोगों की जो उस वक्त बच गए थे, तो आई थिंक जब से लेकर अब तक सिक्योरिटी ड्रिल्स होती हैं स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशन में होती हैं उसी वजह से। उसी की वजह से तो आई थिंक तो उसने एंटी टेरर लॉज को उस स्पेसिफिक केस ने कैसे इफेक्ट किया? आई थिंक लोगों ने डिपेंड किया था कि जब अगर कोर्ट इंटरवीन करे, मिलिट्री कोर्ट इंटरवीन करे, और अगर हम उस वक्त एक्शन ले लेते, ऐसे लॉज होते तो ऐसा ना होता। आई थिंक अभी भी लोग ऐसे अगर हम पास को देखते हैं, हम देखते हैं कि उस वक्त सेफ्टी इंश्योर क्यों नहीं थी, उसके बाद से स्ट्रिक्ट लॉज बने और इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। आई थिंक लॉज हैं पेपर पे, और यही डिफरेंस है पाकिस्तान और डेवलप्ड कंट्रीज़ में कि लॉज तो हर जगह हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का फ़र्क है। तो मतलब दैट्स वाई, डू यू थिंक दैट्स वाई जो मिलिट्री कोर्ट्स थे ज़्यादा लोगों ने उनको ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया था APS के बाद? तो तो मतलब
they thought कि जो जिसने भी किया हो, like we don't know that who did that, but जिसने भी किया हो तो उनको उसी वक्त सज़ा मिलनी चाहिए, rather than like मतलब sometimes पाकिस्तान में ऐसा होता है कि Vengeance, जो revenge का होता है। छोड़ देते हैं हाँ। जो मतलब वो criminals होते हाँ। हैं. So I think the military courts were introduced only because of that particular thing. Okay. So, what kind of psychological effects did terrorism leave on Pakistani society overall? Fear Yeah. to live. Yes. मतलब यही होता है कि like even now अगर हम लोग घर में भी होते हैं ना तो हम लोगों को ये डर होता है कि अभी कहीं से भी कुछ भी हो सकता है. एक तो ये fear होता है, anxiety होती है, मतलब बंदा कहीं जब बाहर जाता है तो तब भी यही सोच रहा होता है कि अभी कुछ भी हो सकता है. तो I think that fear, Yeah. anxiety is the most वो क्या कहते हैं कि like सबसे Integral ज़्यादा जो- impact हाँ, किया हुआ है exactly. पाकिस्तान के people. तो आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक चीज मेंशन की थी, चिलिंग इफेक्ट. Yes. व्हाट इज द चिलिंग इफेक्ट? आई थिंक चिलिंग इफेक्ट ये होता है कि जब इंसान जो है कोई भी अपना ओपिनियन अपने आप को एक्सप्रेस करने से डरता है, लाइक मैन दे फेयर कॉन्सिक्वेंसेज, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज. स्पेशली अगर हम आज देखें ऑनलाइन कम्युनिटी में, हम कोई पॉलिटिकल या कोई भी ओपिनियन शेयर करते हुए डरते हैं. एक तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर से हमें कोई भी अरेस्ट कर सकता है. और ये हमने देखे BS इन्फ्लुएंसर्स, वो बोलते हुए बहुत सोचते हैं कि या तो कैंसिल होंगे या पे वो अरेस्ट हो सकते हैं. तो आई थिंक ये होता है. ये अभी हमारे अंदर फेयर है, हम यूट्यूब पे या कहीं भी हम ऐसी बात नहीं बोल सकते, हमें पता है कि Exactly. कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. एग्जैक्टली. तो डू एंटी लाइक जो स्ट्रिक्ट एंटी टेरर लॉज होते हैं, डू दे मेक पीपल फील सेफ और मोर अफ्रेड? व्हाट डू यू थिंक? I think both. They feel also safe but scared. क्योंकि जब एंटी टेरर लॉज इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो लोग अपने घर में बंद हो जाते हैं, ना अपने बच्चों को बाहर जाने देते हैं. अगर कोई फीमेल हाउस होल्ड करती है तो उसको अपने बच्चों की फिक्र रहती है कि वो स्कूल में है तो क्या, तो उसकी वहाँ पे एंजाइटी और वो होती है, और सेफ्टी भी होती है एक तरीके से. और जब ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो फिर ज़्यादातर लोग इसी को सपोर्ट करते हैं कि स्ट्रिक्ट लॉज इम्प्लीमेंट होने चाहिए. पाकिस्तान में ज़्यादातर सपोर्ट किए जाते हैं स्ट्रिक्ट लॉज भी, इसलिए क्योंकि सेफ्टी इज़ फर्स्ट. अच्छा, तो जो सर्वेलेंस होती है, आप लाइक जो द गवर्नमेंट व्हेन इट इज़ फोकसिंग ऑन सर्वेलेंस ऑन द सिटीजन्स, और जो एक फियर होता है कि हमें डिटेन कर दिया जाएगा या हमें अरेस्ट कर दिया जाएगा, हाउ डज इट अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हमारी होती है? आई थिंक इसकी वजह से हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम अपने ओपिनियंस को, हम एक होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है कि यू कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट वाइल स्टेइंग रिस्पेक्टफुल. यस. सो आई थिंक इसकी वजह से यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और आप जो है इवन इफ यू आर बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट. Yeah, because you can't criticize the And government. even we cannot fight for our rights also. Yeah. मतलब यही डर होता है Yeah. कि कभी कुछ भी हो सकता है. We can be arrested. Exactly. Okay, so in your report you compared Pakistan with countries like UK and Germany. So what's the biggest difference between that, Pakistan as compared to UK and Germany? I think strong legal oversight. This is the biggest difference. Like they implement anti-terror laws, but they make sure they are not permanent. So I Yeah. think Okay. So मतलब you're talking about the time. time. Yeah, time Yeah. frame. ठीक है कि मतलब जैसे military courts were introduced here, Yeah. but if they were introduced there, they would not be for that For a long longer of a time, time. like- Okay, ठीक है. So do you think Pakistan's judiciary has enough power to prevent misuse of anti-terror laws? यस, आई थिंक इट हैज़, बट प्रैक्टिस नहीं होती. वही बात है, क्योंकि हमारी जो कोर्ट्स है वो इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी मतलब फैसला ले सकती है, और गवर्नमेंट जो काम करती है उसको भी मतलब नज़र रख सकती है उस पर कि वो क्या करती है, और उनको कैंसिल भी कर सकती है. बट वही बात हो गई कि हमारे कोर्ट्स भी नहीं फैसला करते सही, गवर्नमेंट के साथ ही चलते हैं. Yeah, exactly. So what do you think कि आपकी क्या suggestions होंगी या क्या आप reforms दे सकते हैं that could make anti-terror laws fairer while still maintaining national security? So in my opinion I think that मतलब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्हें चाहिए कि सिक्योरिटी के साथ साथ हमारे फ्रीडम को भी लाइक दे शुड
keep Sure. balance in between Mhm. both of our rights and our lives. Mhm. They should protect our lives, but they should also secure our rights too. Mhm. We should have enough क्या कहते हैं लाइक Balance. हमें इनफ सारी चीज़ें Freedom. होनी चाहिए, फ्रीडम होनी हम्म। चाहिए कि हमारे Yeah. पास फ्रीडम भी हो लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी भी हो. Yeah. सिक्योरिटी को पाने के लिए हम लोगों को अपनी फ्रीडम हाँ, नहीं मतलब खोनी कोई किसी चाहिए. किसी एक चीज को फुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए एक There चीज should be a को balance पाने between में. Hmm. Okay. Should emergency powers have strict time limits? Yes, like after the AP's attack, but just like military courts were introduced, so उस वक्त उन लोगों ने मतलब यही इसी चीज़ के लिए बनाया था कि डायरेक्ट आफ्टर द इवेंट Yeah. दे विल टेक एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन. Hmm. बट वहीं पे फिर लोगों को डर लगता है कि Hmm. दे वुड बी wrongly accused of Hmm. doing something that they didn't do. So मतलब यही बात हुई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको डर लगता है कि हम लोगों को पकड़ा जाएगा जबकि हम लोगों ने कुछ किया नहीं है. तो इसी बात से मतलब जुडिशियल Yes. ओवरसाइट इज इम्पोर्टेंट. Okay. So, in your opinion, we're just closing up towards the end, but in your opinion, what matters more, security or freedom? I think both matter equally, but I think security के laws हों, strict हों, लेकिन not at the cost of your freedom, your basic human rights. Yeah, agreed. So, what is one message that you want that जो भी सुन रहा है ये podcast वो सबसे एक अगर चीज़ specific out करे तो what should that be? I think the main message I want to give is कि anti-terror laws are made to protect you. लेकिन I think not just कि people should also support the government, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो हैं we usually हम hate ज़्यादा करते हैं. हम उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट नहीं समझते कि उसके पीछे थिंकिंग क्या है, ये लॉस क्यों सेट किए गए हैं. बट वी ऑल्सो मेक श्योर कि हम जो हैं हमारे भी राइट सेक्रीफाइस ना हो. सिक्योरिटी हो, गवर्नमेंट इंश्योर करे, लेकिन जो बेसिक राइट्स है आई थिंक पाकिस्तान जो है एंटी टेरर लॉज एक तो इम्प्लीमेंट करे, लेकिन लोगों का ख्याल भी ज़रूरी है. ठीक है, okay. So, thank you guys so much for participating in this conversation with me today. I feel like at least I learned a lot, and I know that our listeners as well. Thank you so much for listening and staying till the end with us, because this was such a useful discussion, and I feel like it should be implemented within community groups all around Pakistan, because especially as youth, we should know more about our country. So, thank you so much for listening. That is it for today's episode of Youth Talk, and we are going to wrap up now. Thank you so much, Dua, Aisha, and Manur for joining us. And this is your host Sabika, and we are signing out.